Hello students, dear students, in the 10th chapter we have studied about all the topics which are given there in the previous video. Okay, today in this video I am just going to revise all the topics which are given there for the recalling them, and I am going to explain the questions which are given in your exercise. Okay, so let's start the summary of the chapter, that is the respiration in organism. One most important thing is there, students, you should always listen the video carefully, because the homework which is assigned to you, many students have done the same type of mistakes in there. That means you all are copied to each other. There is no need to listen any video, so there is no use of making the video also. Okay, your teachers are doing hard work for making the videos. You just at least listen the video and you can get the proper answer from the video. Okay, at least if you are not want to read the each and every line of the chapter, that video will help you to take out your answers. Okay, so just listen the video, because the most of the things which are explained here are given in your books, and we are going to explain more than the books which are given there related to that topic. Okay, so in this video I am just going to revise the chapter number 10, that is the respiration in organisms. In this chapter, as the name suggests to the chapter, that is respiration written here. Respiration means, students, the process of process in which the food will break down into energy, carbon dioxide and water. Okay, or you can say the process of breakdown of food into to provide the energy provide करने के लिए food का breakdown जब उसके सब particles में होता है, through which they are providing the energy to the livings, that is known as the respiration. उसको हम क्या बोल देते हैं? respiration बोलते हैं. ठीक है, तो हम respiration के बारे में स्टडी करेंगे. respiration कहाँ से स्टार्ट होगा? इट स्टार्ट फ्रॉम द breathing. So what is breathing here? breathing क्या होती है? the process of taking in the oxygen from the air and the releasing of carbon dioxide into the environment. Okay, is known as the breathing. सांस लेना जिसको हम जनरली बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? we take in the oxygen which are needed by organism for the breathing. All the living organisms need the oxygen for the survival or for the breathing. Okay, so the process is known as the in which we take the oxygen and we release the carbon dioxide, which is released during the process of respiration by the breakdown of food के breakdown में जो वो निकलती है, तो हम उसको वो रिलीज कर देते हैं. ये पूरा जो प्रोसेस होता है, तो टू पार्ट्स आर देयर. द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज इट इज डिवाइडेड इन 2 ways. ओके, इनको 2 पार्ट में है ये, लेकिन कहलाएगा ये पूरा प्रोसेस एक सिंगल प्रोसेस कहलाता है, दैट इज ब्रीथिंग. द टेकिंग इन एयर है ना, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर is known as the inhalation. when we breathe we take inside the air, है ना, जब we take the deep breath या breathing normal breathing भी हम लेते हैं, we take in the oxygen. okay, हम अपन nasal cavity से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. that process is known as the inhalation, and the exhalation we release the carbon dioxide, which is released during the breakdown of food material, or you can say through the respiration process. ये क्या होता है? इसमें CO2 बाहर निकलती है, रिलीज होती है. तो हम जब when we inhale we take the oxygen in, and when we exhale, when release the air, we release the gases, we release the carbon dioxide. particular gas is there, that is carbon dioxide, and the test to prove that we release the CO2, the experiment is given there, or activity is given to you, which we have studied earlier in the chapter, that in a test tube when you take the lime water, that is calcium hydroxide, when we exhale the CO2 in the test tube, pass into the test tube of
test tube which contain the calcium hydroxide, or you can say the lime water. The product will form, that is calcium carbonate with water. ये water के साथ calcium carbonate बनेगा which turn the solution milky, जो solution के color को कैसा कर देगा, milky कर देगा. So this is the process in which CO2 is released. So exhalation and inhalation both process are occur alternatively. अपन कह सकते हैं एक के बाद एक, साइमल्टेनियसली अपन बोल सकते हैं, लगातार चलते रहते हैं. ये कंटिन्यू प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे. एंड द कंप्लीट वन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोथ इंक्लूडिंग बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज द वन ब्रीदिंग. दोनों को मिला के क्या कहलाती है, वन ब्रीदिंग. एंड इन अ ह्यूमन बॉडी देर इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ अ ह्यूमन एट द रेस्ट. जब आदमी बैठा हुआ है, रेस्ट में है, कुछ नहीं कर रहा है या कोई हार्ड वर्क नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इन अ नॉर्मल कंडीशन द एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज विच इज वी हैव स्टडीड इज 15 to 18 पर ब्रीदिंग पर मिनट. ये एवरेज निकालते हैं पर मिनट, एक मिनट में वो कितना ब्रीथ करता है. दैट इज नोन एज द एवरेज ब्रीदिंग रेट. उसको हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं, जो हमारी कितनी होती है, 15 to 18 होती है. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स टेक द रेस्पिरेशन. ओके, अब हम ये देखते हैं, जब हमने ऑक्सीजन अंदर लिया तो ये ऑक्सीजन का काम क्या है. व्हाट द ऑक्सीजन डू इनसाइड आवर बॉडी. ऑक्सीजन क्या करती है व्हेन वी टेक द फूड. जब अपन खाना खाते हैं, द ऑक्सीजन ब्रेक डाउन दैट फूड मटेरियल इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जब हमने खाना लिया है तो वो ऑक्सीजन इन सब के साथ मिलके ऑक्सीजन उस फूड मटेरियल को, मे बी वी हैव टेकन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपन ने लिया है उसको फूड मटेरियल को, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको स्प्लिट कर देता है इन देयर सब पार्टिकल दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड होगी इसमें, वाटर रिलीज होगा उसमें, और ऑब्वियसली वो बॉडी के अंदर रहेगा एंड इट रिलीज द एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. So the oxygen is required for the breakdown of food in the livings, that is known as the and the cell of the livings. Okay, अपन ये भी बोल सकते हैं livings के अंदर हो रही है तो obviously the living are made by the cell. The unit of livings are, the smallest unit of livings are cell. हमारी बॉडी की smallest unit क्या है, cell obviously. तो वो cell से क्या करते हैं, cell में होता है each and every cell are responsible for doing the particular function. हमारी बॉडी की, because we know that cell is a functional and structural unit of our body. हमारी बॉडी के सारे जो फंक्शन करने में काम करती है वो कौन करती है, सेल करती हैं. ठीक है, सेल मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेक द टिश्यू, टिश्यू मेक द ऑर्गन, ऑर्गन मेक द ऑर्गन सिस्टम. ओके, और ऑर्गन सिस्टम मेक द बॉडी. वो सारी मिलके सारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके क्या बना लेते हैं, फिर हमारा बन जाता है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. ऑब्वियसली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द that doing that type of particular activity. So this process occur into the cell of livings. So you can say this is the cellular respiration. The another name name of respiration which is asked in your chapter, asked, that is what do you mean by the cellular respiration. So you can explain it in this way, that is the process in which breakdown of food occur into the cell of living organism is known as the cellular respiration. Got it? उसको हम cellular respiration कहेंगे. तो ये हमने respiration देखा. Now respiration is of two type. Respiration दो तरह का होता है, aerobic respiration, anaerobic. As the name suggests, aerobic means it need the air. Okay, and anaerobic there is no need of air. इसमें कोई air नहीं चाहिए. Air means particularly we are talking about the oxygen. Obviously we all know which gas is responsible for that, that is the oxygen. So what happen in the aerobic respiration? In the aerobic respiration, the respiration process occur in the presence of oxygen, means the breakdown of food occurs in the presence of oxygen. वो oxygen की presence में ही possible हो पाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, aerobic respiration. And in this process what we can get, obviously we get the energy, carbon dioxide and water molecule. When the glucose break down, glucose क्या होगा, convert होगा in the presence of oxygen. Okay, and if you want to explain it in a symbolic form, you can write here plus O2 means in the presence of oxygen.
it convert into CO2, H2O. I'm using the symbols to explain this. You can write the word formation or word equation also, and use the arrow in between the reaction. If you are writing the reaction, this is not a sum of mathematical equation is not given there, so don't write here equal sign of equal. You just proceed in the form of arrow. Okay, means the reaction कैरी फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, वो आगे की तरफ जा रही है, कन्वर्ट हो रहे हैं. एंड इन दिस प्रोसेस ऑब्वियसली एनर्जी इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन. इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. अनदर वन विच इज गिवन देयर is known as the anaerobic respiration. In the anaerobic respiration, obviously the breakdown of food material means we have taken food in the form of glucose. Obviously हमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ही है ये, तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में अपन लेते हैं. तो मीन्स देयर इज अ नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो माइनस का साइन शो कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है. यू कैन राइट है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इट प्रोड्यूस H2O प्लस obviously sorry you can write here alcohol. What it produce? Alcohol on carbon dioxide and obviously it gives the energy. तो ये देगा ही देगा, लेकिन इसमें क्या बनेगा, इस प्रोसेस में अल्कोहल साथ में बनता है. तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन. विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज इज दैट दिस इज अ एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो एनारोबिक में क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगती है, उस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, और ग्लूकोज ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल. वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, फूड मटेरियल, वो एल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर बन जाएगी इस प्रोसेस में. तो हम ये बता सकते हैं इसमें, इट इज़ नोन एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. गॉट इट. अब क्या है, हमने क्या देखा था, वन मोर थिंग विच वी हैव स्टडीड हेयर इन द कंडीशन ऑफ हैवी एक्सरसाइज एंड यू कैन से ड्यूरिंग द रनिंग एंड ड्यूरिंग अनदर एक्टिविटी. जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या हम ये बोलें कि दौड़ के आ रहे हैं, या हम खेल के आ रहे हैं, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करके आ रहे हैं, our body need more and more amount of energy. Obviously for the energy what our body need, it need the more amount of oxygen. वो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन की चाहिए होगी, बिकॉज इफ वी टेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विल अकर देयर, है ना. ब्रेकडाउन कब पॉसिबल होगा, जब ऑक्सीजन हम और लेंगे. तो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या हम खेल के आते हैं, या हम दौड़ के आते हैं, या हम कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आवर बॉडी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. तो वो जो प्रोसेस होता है, उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी वो प्रोसेस चलता है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती. तो उस कंडीशन में जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, पार्शियल एनारोबिक रेस्पिरेशन. मीन्स लिटिल बिट, यू कैन से फॉर द लिटिल बिट टाइम, या कुछ टाइम के लिए उसको पार्शियल बोलेंगे, पूरी तरह से नहीं बोल सकते. तो पार्शियल एनारोबिक बोलेंगे उसमें, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होगी नहीं, और ऑक्सीजन सफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, जो ग्लूकोज है, इट प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड. ये क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, इट प्रोड्यूस द, ये होगा पार्शियल एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, और इसमें क्या होगा, द फूड मटेरियल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड. ओके, always learn the name of that acid known as the lactic acid, which is found in the obviously in the curd. Okay, तो ये इसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड ये करेगा प्रोड्यूस, और ये लैक्टिक एसिड इट एक्यूमुलेटेड विद द सेल, ये सेल के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और उसमें क्या आ जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर भी फील द मसल क्रम्प्स, हमें खिंचाव महसूस होगा, हमें दर्द महसूस होगा, क्योंकि वो सफिशिएंट सप्लाई हो नहीं पाई थी. तो लैक्टिक एसिड उसमें मिक्स होने की वजह से और बॉडी फील द
that type of pain or that type of difficulty. Okay, that is known as the muscle cramps. उसको हम muscle cramps बोलेंगे. How we can cure the muscle cramp? We can cure the by taking the hot bath, या तो गर्म पानी से हम नहा लें, एंड बाई डूइंग द मसाज ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. जहाँ पे अपने को मसल क्रम फील हुआ है, लेग्स में है, हाथों में, जहाँ भी है, जिस भी पार्ट में है, हम उस पर क्या करें, ऑयल की मसाज कर लें. इससे क्या होगा, the cells of our body by taking the blood circulation will occur properly, and because of that they need the more amount of energy will supplied in the all part of the body. Obviously ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी जब ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गोज थ्रू द ब्लड. वो लंग्स से आके कहाँ पे मिक्स हो जाता है, वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है ऑब्वियसली. तो वो ब्लड से क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन की प्रॉपर, और ब्लड वेसल में जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो जाएगी तो वो क्रम्स से हमें रिलीफ मिलेगा. तो ये हमने प्रोसेस इसमें रीड कर लिया था, किसके अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस में अपन ने किया था. अब उसके बाद देखा था हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन ने देखा था. उसके अंदर क्या होता है, हाउ वी रेस्पायर, हम कैसे रेस्पायर करते हैं. तो ऑब्वियसली वी ऑल नो वी इनहेल द एयर थ्रू आवर नसल कैविटी. किससे इनहेल करते हैं अपन, नसल कैविटी से हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, एंड गोज थ्रू द विंड पाइप. ये कहाँ से जाएगा, विंड पाइप जो है हमारा, फेरिंग्स जो है यहाँ पे, व्हेन वी इनहेल एयर गोज इनटू द विंड पाइप. ये हमारे यहाँ पे विंड पाइप होता है. फूड पाइप और विंड पाइप दोनों साथ ही रहते हैं, उनके एक ही ओपनिंग रहती है, दोनों को बिल्कुल पास में रहते हैं. एक ओपनिंग रहती है जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये खुलती है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये जो वॉल्व है इस साइड में खिसक जाता है. तो ये क्या है, विंड पाइप में जाएगी एयर, एंड थ्रू द विंड पाइप इट पासेज इनटू द लंग्स. फिर वो किसमें, लंग्स में सप्लाई हो जाए. लंग्स पास इट इनटू द ब्लड वेसल, एंड फ्रॉम द ब्लड वेसल इट सप्लाइज इनटू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना. बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगी, सप्लाई कर दी जाएगी. तो ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड अबाउट दैट, एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट lungs we have the rib cage, है ना. Rib cage surrounds the lungs and it protect the outer from the outer injury, है ना, टू द लंग्स को आउटर इंजरी से बचाने के लिए इस तरह का रिब केज बना हुआ होता है ना. और रिब केज के नीचे एक देयर इज अ चेस्ट कैविटी, और नीचे की तरफ एक मस्कुलर शीट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं. ठीक है. तो हमारी क्या रहता है, जैसे ही नासल कैविटी से यहाँ से आया, नासल कैविटी में से एयर पास हुई, यहाँ पे ये विंड पाइप है, विंड पाइप के बाद में यहाँ पे ये जो पार्ट है इसके अंदर क्या रहेगा, लंग्स रहेगा, है ना. ये जो पार्ट है इस तरह का अपन ने देख लिया था इसकी स्ट्रक्चर. तो ये लंग्स रहेंगे, लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई होगी. तो यहाँ पे क्या रहता है, ये नीचे की तरफ जो एक मस्कुलर शीट होती है जिसको बोलते हैं डायफ्राम, ऊपर क्या रहता है, रिब केज रहता है. ये हड्डियों का ढांचा जिसको बोल सकते हैं अपन, ये रहती हैं इसमें, प्रोटेक्ट करके रखती हैं. जो यू कैन सीधा, अगर हम क्लास में होते तो हम किसी दुबले पतले स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे अपन चेस्ट कैविटी के यहाँ टच करके अपन इनको फील कर सकते थे. तो ये हमें पता चल जाता है कि ये हमारे क्या है, रिब केज है, जो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को आउटर इंजरी से बचाने के लिए, जो हमारा क्या कहलाता है, स्केलेटन भी कहलाता है. तो ये रिब केज होता है. एंड इन द रिब, व्हेन वी इनहेल द एयर गोज इनटू द लंग्स, दे एक्सपेंड. वो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे. रिब केज क्या होगा, when we inhale we take the air inside it, then they expand, so the rib cage move upward direction. Okay, by taking the deep breath, and you can do the activity by with your friends, and you can say at your home with your cousins or your brother, your sister. Okay, when we inhale, we take the deep breath, our chest cavity move in upward direction. जैसे chest cavity ऊपर आएगी, diaphragm move downward direction. ये जस्ट उल्टा होता है. रिब केज जैसे ऊपर होगा, डायफ्राम नीचे आएगा, और जैसे ही हम व्हेन वी एक्सहेल द एयर गोज आउट एंड द रिब केज मूव डाउन एंड द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन. ये जस्ट अपोजिट होगा, ये याद रखना है अपने को. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. अच्छा, नासल कैविटी में हमने क्या देखा था, ये हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे. समटाइम्स वी स्नीज. व्हाई वी स्नीज, हम स्नीजिंग क्यों, अपने को छींक क्यों आती है. समटाइम्स इन अ डस्टी एरिया, यू कैन से द पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर एरिया. व्हेन वी इनहेल, the most of the particles goes through that air particles, and they enter through the nasal cavity, and in our nose we have the
mucus, that is which make our nose you can say liquidy, na, moist, you can say, okay, and have the hairs. So the dust particles are trapped by that hair particles. Sometimes the inner lining feel irritation because of the excess amount of that particles, and because of that, to remove that we because of that irritation अपने को खुजली सी होती है, we sneeze and the dust particles move out by the sneezing. उसके साथ ही वो बाहर आ जाते हैं. So doctor or always we all know that when we sneeze, the dust particle which we taken through the inhalation process are thrown out by the sneezing process. So during that sneezing we should cover our nose and mouth in that particular area. हमें उसको cover करके रखना चाहिए ताकि वो germs which we taken थ्रू दैट, जर्म्स हैं या डस्ट पार्टिकल हैं जो भी हैं, वो किसी दूसरे के स्प्रेड नहीं हो एनवायरनमेंट में और किसी दूसरे को जाके उसका इफेक्ट ना हो. सो दिस इज़ अबाउट द स्नीजिंग प्रोसेस, है ना. उसके बाद हमने देख लिया था हाउ दिस इज़ द प्रोसेस, हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं. ओके, दिस इज़ द ब्रीदिंग प्रोसेस. मैनी स्टूडेंट्स हैव रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज़ BREATHE. ब्रीथ की स्पेलिंग में BREATHE, ब्रीथ ई लगाना जरूरी है. ठीक है, तो ये देख लेना आप एक बार. उसके बाद हमने देखा था हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें हमने देखा था कॉकरोच है. कॉकरोच में क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है, एंड इन देयर आउटर स्केलेटन उसकी बॉडी के अंदर क्या रहता है, अंदर तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं. और ये जो ओपनिंग रहती है थ्रू विच एयर एंटर और CO2 कम्स आउट इज नोन एज द स्पाइरेकल्स. क्या कहलाते हैं, स्पाइरेकल्स. इसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स. तो जो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन्स हैं वो क्या रहते हैं, द कॉकरोच हैव द स्पाइरेकल्स अटैच विद देयर आउटर पार्ट ऑफ बॉडी, या कह सकते हैं द ओपनिंग is known as the opening in the with the body of the cockroach is known as the spiracles, and through the spiracles they take the oxygen inside and release the carbon dioxide, and they are attached with the network of tube like structure that is known as trachea, and trachea passes that oxygen to the all part of the body. वो उसके अंदर सारे के अंदर जाता है. ये तो हमने देखा कॉकरोच का. उसके बाद हमने देखा था अर्थवर्म. अर्थवर्म दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. उसकी जो स्किन होती है स्लीमी और मॉइस्ट होती है. दे ब्रीथ थ्रू द दैट स्किन ओनली, वो स्किन से ही क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. उसके साथ ही हमने देखा था फ्रॉग्स. फ्रॉग्स हमें पता है दे आर द एम्फीबियंस, दे लिव इन द वाटर एंड ऑन द लैंड एरिया. दोनों जगह ही रहते हैं. जब वो वाटर के अंदर रहते हैं ऑब्वियसली दे हैव द लंग्स लाइक द ह्यूमन बींग्स, है ना, वो ह्यूमन बींग्स के जैसे. तो जैसे ही वो बाहर आते हैं दे ब्रीथ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो ब्रीदिंग करते रहते हैं. एंड समटाइम्स व्हेन दे डू इन दैट पर्टिकुलर दे फील द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन मोर देन दे ब्रीथ थ्रू द स्किन. वो किससे, स्किन के थ्रू भी क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. तो फ्रॉग के अंदर ब्रीदिंग जो होती है वो कैसे होती है, लंग्स और स्किन दोनों तरह से होती है. तो यह बहुत सारे बच्चों ने फिन्स भी लिखा है, दे डू नॉट हैव फिन्स. इवन जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है फ्रॉग का, और वो हमारा एक ही होता है. उनकी 4 चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर सेम टाइप. तो हम ये कह सकते हैं उसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं फ्रॉग के, वो सेम ही होते हैं. तो वो लंग्स ही होते हैं उसमें ब्रीदिंग के लिए, किसमें, फ्रॉग में. ठीक है, तो वो दोनों लैंड और दोनों एरिया पे रहने की वजह से दे ब्रीथ थ्रू इन द थ्रू द स्किन एज वेल एज द lungs. Got it? After that we are going to study about the frog we have done, earthworm we have done, and the cockroaches we have done. After that the plants are given there. Obviously you all know the plants breathe through the leaves, the outer part from which they breathe, that is leaves. outer part में तो shoot system जो होता है उसमें तो leaves से क्या करते हैं breathing. They have the teeny spore in the lower part of the leaves that is known as the stomata. तो उसमें जो organ होता है वो stomata के through क्या करते हैं, they take in the oxygen and they release out the carbon dioxide. And in the respiration process they always need the oxygen like human beings.
ऑल लिविंग्स नीड द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। उनमें ऑक्सीजन ही होती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि रेस्पिरेशन के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फूड बनाने के लिए, बिकॉज दे आर ऑटोट्रोप्स, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। इन दैट प्रोसेस दे नीड द कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन द रेस्पिरेशन दे ऑलवेज नीड द ऑक्सीजन और ऑब्वियसली दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। वो सेम प्रोसेस होता है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो खाना बनाने का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन वो ब्रीदिंग करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, उनमें ब्रेक डाउन होता है जो भी अंदर जाता है। तो वो सेम प्रोसेस हमारे अंदर होता है, वो इन्हीं के अंदर होता है। और वो नीचे से दे हैव द रूट्स इनसाइड द सोयल। तो सोयल के अंदर क्या रहते हैं, रूट्स जो होती हैं उनमें रूट हेयर रहते हैं। उन रूट हेयर से दे टेक द एयर विच आर फाउंड इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सोयल। सोयल के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर गैप्स होते हैं, वहाँ से वो एयर को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं एंड दे ब्रीथ। और ओवर वाटर अगर हो जाता है तो क्या होता है, द एयर गैप्स फिल्ड विद द वाटर एंड द एयर कम्स आउट। और एयर जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी, जिसकी वजह से उनमें रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, वो जल्दी क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर स्टूडेंट्स। इन दिस चैप्टर इन द एक्सरसाइज द क्वेश्चन विच आर गिवन देयर। मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको फटाफट क्या क्या दे रखे हैं इसमें। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई डज द एथलीट ब्रीथ फास्टर। एथलीट जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं इन कंडीशन में वो फास्ट ब्रीदिंग क्यों करती हैं, हमने पहले ही कर लिया था। दे नीड द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, सो दे नीड द मोर ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन बॉडी दे ओपन देयर माउथ एंड दे वांट टू टेक द डीप ब्रीथ फॉर फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद दिया है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमने किया है, सिमिलरिटी क्या है ऑब्वियसली हम बता देंगे। उसके बाद वाई डू वी स्नीज, वी हैव डन ऑलरेडी। उसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको दिया है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं A, B एंड C फिल्ड विद वाटर। 3/4 पार्ट उनका क्या करा है, वाटर से भरा हुआ है। अब उसके उनमें क्या दे रखा है आपको, एक के अंदर आपको दे दिया स्नेल डाला हुआ है, दूसरे के अंदर आपको एक वाटर प्लांट दिया हुआ है, एक में प्लांट और वाटर स्नेल दोनों दिए हुए हैं। तो किसमें CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसमें प्लांट और स्नेल दोनों हैं, बिकॉज दोनों क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे, तो CO2 का कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे MCQ दे रखे हैं। ब्रीदिंग रेट हमारी 15 to 18 होती है। मसल क्रम्स के टाइम लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। ओपनिंग जो होती है कॉकरोच में स्पाइरिकल्स होती हैं। मैचअप्स हैं वो आप कर लोगे, ट्रू फॉल्स हैं, they are also you can do through the summary of this chapter. Okay, thank you.